The Nepali people respect their environment too much. That's why the environment is too clean and clear. बाकी तेरे घर में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई हो तो उसको पूछना कि तू हमारे एनवायरमेंट के लिए क्या करेगा, तुम्हारे बच्चे के शिक्षा के लिए क्या करेगा. I am not comparing anything about between Nepal and India. राम राम भाई, क्या हाल है? सत श्री अकाल, केम छो? मैं अभी हूँ नेपाल में, और नेपाल में एक छोटा सा गांव है जिस गांव से बहती हुई ये पहाड़ी नदी जो है, इसका पानी मैंने अभी अभी आपके सामने पी लिया. इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बातें करना चाहूँगा जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं कहा होगा. तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ, आपके घर के बच्चों के लिए, आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए. मैं अभी नेपाल में हूँ, और मैं नेपाल में आने के बाद एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करा कि यहाँ का एयर बहुत प्यूरिफाइड है, यहाँ का पानी बहुत साफ है, यहाँ का लोग बहुत काइंड है, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों के अंदर सिविक सेंस है. हम भारत में बैठ के बात करते हैं विश्व गुरु बनने का, लेकिन वेयर आवर एयर इज पोल्यूटेड, आवर रिवर इज डाइंग, आवर सॉइल इज डाइंग, आवर पीपल हैव नो एनी काइंड ऑफ सिविक सेंस, आवर पॉलिटिकल पार्टीज आर corrupted, then why we are talking about that the India will be the Vishwa Guru in future world? Election is coming. So any political party, if come to your house for collecting their votes, ask them what is your agenda for save the environment. What is your proper blueprint for save our river? What is your proper idea for save our soil? What is your memorandum for save our future generation? India's people have no any kind of civic sense. India's people have no any kind of environmental knowledge. That's why our environment is dying. That's why our nature is dying. That's why our river is dying. And here you can see in Nepal, you can completely drink this river's water directly. I don't think so in India you can go and drink any kind of river's water right now, because our river is completely polluted. But the point is, in India, people worship the river as a mother, but here they are not worship the river as a mother. Just this is a completely as it is a river, and you can see the river water is crystal clean. You can completely drink this water. My point is, I'm not comparing anything about between Nepal and India. I'm just talking about, the point is, if we are not protect our environment properly, if we are not educated to the people how to protect the nature, how to maintain the river, how to maintain the soil, then the future will be very pathetic for us. And actually the comparison is very irrelevant for me. I'm not talking about any particular political party, whatever the political party is. My point is, if they come to your home for collecting their votes, just ask them, what is your plan for save our environment, save our nature, save our river? And one thing I noticed that the air is very purified. The soil, the farmer, they are not using any kind of pesticides in the agricultural land. They are using the organic thing for their farming. So the soil is very rich over here. The river is very crystal clear in here. So if we are looking for the tag of the Vishwa Guru in future for India, for Bharat, we should maintain our civic sense, we should maintain our river, we should maintain our environment. That's why we can protect our future generation in Bharat. So this is my point. I'm in Nepal, in a small village, and here the river comes from the mountain, and people don't worship the river as a mother, I'm telling you.
जस्ट दिस इज अ कंप्लीटली रिवर एंड द वाटर इज सो क्लीन। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही था कि मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा यहाँ पे आने के बाद, मैं नोटिस करा कि ये जगह बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है, बहुत अमेजिंग है। और भाई यहाँ का नेचर, हवा, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। मैं एक बार पानी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। यू कैन सी द क्रिस्टल क्लियर वाटर हियर, ओवर हियर द वाटर इज टू मच क्लीन, यू कैन सी। So my point is, we should learn from Nepal how to protect the environment, how to protect the nature, how to maintain the river, how to maintain the soil. Now, if anybody giving me the tag that I'm anti-national or something like that, okay, give me the tag, but I'm coming from Bharat and I love my country too much, very much. And I think कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। मैं मानता हूँ हमारे देश के अंदर बहुत सारे खामियां हैं, लेकिन हम सब मिलके हमारे देश को, हमारे भारत को अच्छे बनाएंगे, हमारे भारत का नदी को अच्छे बनाएंगे, हमारे भारत के जो फॉरेस्ट है उसका रक्षा करेंगे, हमारा भारत का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करेंगे, तब जाके हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। सो वी मेक अवर कंट्री ग्रेट कंट्री together. So I'm requesting to all political parties, to all ministers who are maintaining the forest environment, river, soil, everything, and also the farmer, please use the organic thing for your agricultural land. Just protect your soil, protect your river, protect your environment. Otherwise ठीक हमारा आने वाले फ्यूचर जो है वो बहुत बड़ी समस्या का सामना करने वाला है। तो इसलिए हम सबको मिल के हमारे देश को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। बाकी आप सब समझदार हैं, आप सब एडुकेटेड हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, मेरे जैसा गंवार तो नहीं है भाई। तो बस इतना बताना चाहता था। मैं कंपेयर, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा। हमारे देश में कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो यहाँ पे भी कुछ अच्छी चीज़ें होंगे। तो मैं बस अपना अनुभव जो है वो शेयर करा आप लोगों के साथ। बाकी चाहता था कि यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा, यहाँ का रिवर देखा, यहाँ का हवा देखा, यहाँ का वादियाँ देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लीन, क्लियर and their respect, Nepali people respect their environment too much. That's why the environment is too clean and clear and everything is very amazing. So बस इतना बताना चाहता था। राम राम भाई। बाकी तेरे घर में अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आई तो उसको पूछना कि तू हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या करेगा, तुम्हारे बच्चे के शिक्षा के लिए क्या करेगा, तू हमारे नदी के लिए क्या करेगा, तू हमारा मिट्टी के लिए क्या करेगा, तू हमारा फार्मर के लिए क्या करेगा, ये सब पूछ लेना। फिर जाके तेरा जो प्रीसियस वोट है ना तू दे देना। बाकी भाई मैं चलता हूँ। यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा व्यू है, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है इस तरह का बातें करने के लिए हिम्मत चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अभी सोशल मीडिया में, वो लोग बात नहीं करते इसके बारे में, लेकिन भाई मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं अपने भारत को बहुत प्यार करता हूँ और मैं मानता हूँ कि हमारा भारत बहुत अच्छे हैं, लेकिन और इसको अच्छे बनाने के लिए हमारे को सिविक सेंस अच्छा करना होगा। एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को एडुकेशन देना होगा, सॉइल के बारे में बच्चों को एडुकेशन देना होगा, नेचर के बारे में बच्चों को एडुकेशन देना होगा। और सबसे बड़ी बात है, नेचर के और एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा काइंडनेस दिखाना होगा। इतना बेरहमी से रेप कर रहे हैं ना हम भारत के एनवायरनमेंट का, बहुत बुरा हाल होने वाला है भाई। राम राम। बहुत लेक्चर मार दिया, लेकिन चल ठीक है, इतना तो कर ही सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, ठीक है। चल राम राम, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टेक केयर।